Hello everyone, in this video I'll tell you the Hindi translation of page number 5, 7 and 8. But before starting this video, I just want to suggest you some COVID instructions. Wash your hands frequently, use sanitizer whenever you need, and maintain social distancing whenever you go out from the house. Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? It was because they were sorry, too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. अब फ्रांस समझ गया कि गांव के बूढ़े कमरे में पीछे क्यों बैठे थे। इसलिए क्योंकि उन्हें भी बहुत दुख था, उन्हें भी बहुत खेद था कि वे स्कूल में और अधिक क्यों नहीं गए थे। हमारे अध्यापक का उसकी 40 वर्ष की ईमानदारी की सेवा का धन्यवाद करने और उस देश के प्रति जो अब उनका नहीं रहा था के लिए सम्मान प्रकट करने का उनका यह अपना तरीका था। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तो मैंने अपने नाम का बुलावा सुना। It was my turn to recite. अब सुनाने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake. मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को सुनाने के योग्य होने के लिए और बिना किसी गलती के ऊंचे और स्पष्ट शब्दों में सुनाने के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन मैं तो पहले ही शब्द में अटक गया और अपना डेस्क पकड़े हुए खड़ा था और मेरा दिल धड़क रहा था और मेरी नज़रें ऊपर उठाने का मुझ में साहस नहीं था। I heard M. Hamel say to me. मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। I won't scold you. I won't scold you. मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। Little Franz, छोटे फ्रांस, you must feel bad enough. तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा। She, how it is. Every day we have said ourselves, वाह, I have plenty of time. हर दिन हम खुद से कहते हैं, मेरे पास बहुत समय है। I shall learn it tomorrow. And now, you see where we have come out. That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the Rost, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. मैं कल पढ़ लूँगा और अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। हाँ, यही तो बड़ी मुसीबत है। आलसेस के साथ भी है। यह सीखना अगले दिन पर टालती रहती है। अब उन बाहर के लोगों को यह कहने का अधिकार होगा। क्या बात है, तुम तो कहते हो कि तुम फ्रांस के लोग हो, लेकिन फिर भी तुम ना अपनी भाषा बोल सकते हो और ना लिख सकते हो। लेकिन छोटे फ्रेंड्स, तुम्हारी दशा सबसे खराब नहीं है। हम स्वयं को बहुत बातों के लिए धिक्कार सकते हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के बहुत इच्छुक नहीं थे। वे तुम्हें किसी खेत या मिल्स में काम पर लगाना चाहते थे ताकि थोड़ा धन और मिल जाए। एंड आई, और मैं भी दोषी हूं। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मतलब वो खुद को भी इस बात के लिए ब्लेम करता है।
Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? क्या मैंने तुम्हें अपने पाठ याद करने के बजाय तुम्हें हमेशा पौधों में पानी के भरने के लिए नहीं भेजा? And when I wanted to go fishing, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, did I not just give you a holiday? क्या मैंने तुम्हें केवल छुट्टी नहीं दी? Then, from one thing to another, MML went on to talk of the French language. फिर एक बात करते हुए एम हेमल फ्रेंच भाषा की बात करने लगे, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. और ये कहने लगे, ये भाषा संसार की सब भाषाओं से सुंदर है, सबसे अधिक स्पष्ट है और तर्कसंगत है. हमें इसे याद रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कोई राष्ट्र गुलाम बन जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा से पक्की तरह जुड़े रहते हैं तब तक उनके पास अपने जेल की चाबी रहती है, यानी कि उस जेल से निकलने की चाबी रहती है. देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. फिर उन्होंने व्याकरण की पुस्तक खोली और हमारा पाठ पढ़ाया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. मुझे आश्चर्य हुआ कि यह मेरी समझ में कितनी अच्छी तरह से आ गया. ऑल ही सेड seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. जो कुछ उन्होंने कहा वह बहुत सरल लगा. मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने पहले भी कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था और ना ही उसने कभी इतने धैर्य से समझाया था. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लगता था कि वह बेचारा हमें सब कुछ देना चाहता था जो उसे आता था और एक ही बार में हमारे दिमाग में भर देना चाहता था. ये लिल फ्रांस के व्यूज़ हैं एम हेमिल के लिए. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. व्याकरण के बाद हमें लिखाई का पाठ मिला. दैट डे एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेक. यानी कि एम हेमल ने जो हमें नई कॉपियाँ दी थी उनमें बहुत सुंदर गोल हस्तलेख में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. मतलब आप देख सकते थे कि किस प्रकार सब कोई काम में लगे थे और वहाँ कैसी शांति थी. The only sound was the scratching of the pen over the paper. वहाँ केवल एक मात्र ध्वनि कागज पर चलते हुए कलमों की थी. Once some beetles flew in. एक बार कुछ भौरे उड़कर आ गए. But nobody paid any attention to them. लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया. Not even the littlest one. यानी कि छोटे बच्चों ने भी नहीं. Who worked right on tracing their fish hook as if that was French too. जो मछली कांटों के चित्र खींचने में लगे थे जैसे कि वह भी फ्रेंच हो. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे और मैंने अपने मन में सोचा, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना गवाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब कभी मैंने अपनी नज़र ऊपर उठाई तो देखा कि एम हेमल अपनी कुर्सी पर मोशनलेस बिना हिले डुले बैठे हुए थे. कभी एक वस्तु को देखते थे, कभी दूसरी को. ऐसा लगता था जैसे वह अपने मन में
यह स्थिर करना चाहते थे कि स्कूल के उस छोटे कमरे में हर चीज़ कैसी लगती थी। फैंसी। फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. जरा सोचो, वह 40 वर्ष तक उसी एक स्थान में रहा था, उसका बगीचा खिड़कियों के बाहर था और उसकी कक्षा उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, हमेशा से ऐसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे, बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे और होप वाइन बेल जो उसने खुद लगाई थी खिड़कियों से लिपटकर छत पर पहुंच गई थी। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने से उस बेचारे का दिल टूट गया होगा, अपनी बहन को अपना ट्रंक लगाते हुए इधर उधर घूमने की आवाज़ सुनने से, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। Trunk is an important word which means luggage. But he had the courage to hear every lesson to the very last. परंतु उसमें हर पाठ अंत तक सुनने का साहस था। After the writing we had a lesson in history. लेखन के पश्चात हमारे इतिहास की पढ़ाई हुई। And then the babies chanted their ba, be, bi, bo, bu. और छोटे बच्चों ने बा बे बी बो सुनाया। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. और कमरे में सबसे पीछे बैठे बूढ़े हासर ने अपने ऐनक लगा रखी थी और दोनों हाथों में अपनी प्रथम पुस्तक पकड़कर उनके साथ अक्षरों के हिज्जे करने लगा, यानी कि उन्हें बोलने लगा। You could see, आप देख सकते थे, that he too was crying, कि वह भी चिल्ला रहा था। His voice trembled with emotion, उसकी जो आवाज़ थी वो भावुकता के कारण लड़खड़ा रही थी। And it was so funny, और यह उसको सुनना इतना हास्यप्रद था, that we all wanted to laugh and cry, कि हम सभी लोग हंसना चाहते थे और चिल्लाना चाहते थे। How well I remember it, that last lesson, मुझे वह अंतिम पाठ कितना अच्छे से याद है। लिटिल फ्रांस सोचता है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजुलस, फिर एंजुलस ने। एट द सेम मोमेंट द trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. उसी क्षण प्रशियंस ने ड्रिल से लौटते समय हमारी खिड़कियों के नीचे अपने जो उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ट्रम्पेट्स जिसे बोलते हैं हम, नरसिंघे, वो बजा दिए। एम हेमल कुर्सी से खड़े हो गए। उसका रंग पीला था। मुझे कभी वह इतना लंबा दिखाई नहीं दिया था। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई, बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। मेरे मित्रों, उसने कहा, मैं, परंतु उसका गला रुक गया, वह आगे नहीं बोल सका। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might means power, he wrote as large as he could. फिर वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ा, चौक उठाया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसने जितना बड़ा लिख सकता था लिखा। वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांस तुम आबाद रहो। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. फिर वह रुक गया, अपना सिर दीवार से टिकाकर बिना एक शब्द बोले उसने अपने हाथ से संकेत किया, स्कूल की छुट्टी, आप जा सकते हैं।